Hello everyone, this is Titi Saluja and today the topic which we are going to discuss in this video is operation on whole numbers. So guys, whole numbers क्या होती हैं इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे natural numbers क्या होते हैं. ओके, वन बाय वन हम लोग देखते हैं. सबसे पहली चीज़ हमारे natural numbers क्या होते हैं. Natural numbers are those numbers which start with 1 यानी कि 1, 2, 3 and then so on. Second जो main chapter हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं that is your whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are those numbers which starts from 0 and then 1, 2, 3 and then so on. Okay, so any number which starts from 0 is known as your whole number. Now let's talk about your smallest natural numbers. Okay, smallest natural number जब हमें ये पता है कि natural हमारे 1 से start हो रहे हैं तो क्वेश्चन आता है टेल मी द स्मॉलेस्ट नेचुरल number. So the smallest natural number will be 1 and similarly अगर आपसे पूछा जाए what is the smallest whole number, so the answer here will be 0. Why? Because whole number starts from 0 and natural number starts with 1. Clear? अब हम लोग next topic देखते हैं. So guys, our next topic is about predecessor and successor. Predecessor is the number which comes before that given a particular number, whereas successor is that number which come after that number. ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी क्लासेस में अपने पढ़ चुके थे. Predecessor क्या होता है बेटा? ऐसा नंबर जो आपका बिफोर आता है. तो बिफोर में हम लोग क्या करते हैं -1, वेरा सक्सेसर क्या होता है जो आफ्टर आता है. तो इन सक्सेसर वील डू +1. जैसे कि एक नंबर दे रखा है मान लीजिए 359, तो प्रेडिसेसर क्या होगा इस नंबर के पहला वाला नंबर. ठीक, 359 में से अगर हम लोग 359 में से if we'll subtract 1 we'll get 358. Similarly, if you want to take it out its successor, what we will do is we will add 1 in this number. So it will be 359 plus 1 and here we'll get 360. So the successor of this number is this and the predecessor of this number will be 358. ठीक, हमेशा याद रखेंगे predecessor में हम लोग क्या करेंगे बच्चों -1 and successor में हम लोग क्या करेंगे +1. क्लियर? जितने बड़े से बड़ा नंबर हो, चाहे वो लैक्स में हो, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, चाहे वो हंड्रेड्स में हो, ठीक, यही प्रोसेस आपका apply. So the next topic which we are going to study is about the properties of whole numbers. Students one by one will go through all the properties of whole number. ठीक है? First property is your closure property. Closure property states that if you are going to add or multiply any two whole numbers, the resultant will also be a whole number. जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. पहले एडिशन देखते हैं. अगर हम लोग कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी अ होल नंबर. अगर ये दोनों आपके होल नंबर हैं दिस विल ऑल्सो बी योर होल नंबर. जैसे कि 3 + 2 will be your 5. 3 is also a whole number, 2 is also a whole number, so the resultant 5 will also be a whole number. Similarly ये चीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं बच्चों. ठीक, मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए हम लोगों ने किया A into B and the result is C, so the answer that is the result that is the C will also be a whole number. जैसे कि 5 into 2 will be equals to your 10. So here 5 is also a whole number, 2 is also a whole number and 10 is also a whole number. ये प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही जाएगी. It will not go with your subtraction and division. ये भी देख लेते हैं कैसे. देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी है मान लीजिए अगर कोई नंबर है जैसे 8 - 9, 8 - 9 होगा आपका -1. तो ये -1 आपका होल नंबर नहीं है, ये एक नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा. तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी. ठीक, सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए 9 को लेट्स टेक द नंबर 9 डिवाइड बाय 0 करा. कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका इन्फिनिटी. इन्फिनिटी भी आपका होल नंबर नहीं हो सकता. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी विल गो विद योर एडिशन एंड योर मल्टीप्लिकेशन ओनली.
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ यू आर गोइंग टू रीअरेंज योर नंबर्स द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है आप a प्लस बी लिखोगे, चाहे आप b प्लस a लिखोगे, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि 3 प्लस 5 आपका 8 आएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे 5 प्लस 3 भी आपका क्या होगा, 8 होगा। सो दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिमिलरली इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भी कर देते हैं। a इंटू बी विल बी इक्वल्स टू b इंटू a, दैट इज 2 इंटू 3 दैट विल बी 6 एंड यहाँ पे भी 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। तो दिस मतलब RHS और LHS क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ का सीक्वेंस चेंज कर दिया एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में, तो देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी, कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं। लेट्स टेक a प्लस बी प्लस c will be equals to your a प्लस बी प्लस c। ठीक, अगर हम लोगों ने यहाँ पे पहले के 2 पेयर बना लिए और यहाँ पे लास्ट के 2 पेयर बना लिए, आंसर में आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1, पहले के 2 पेयर बनाए, इसका मतलब हमें पहले के 2 नंबर्स पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। 3 प्लस 2 विल बी और 5 प्लस 1 है, आंसर विल बी 6। ठीक, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे आते हैं इस तरफ। ठीक, a को हमने लिया था 3, b was 2 एंड c was 1। तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना था। 2 प्लस 1 विल बी और 3 एंड 3 प्लस 3 विल बी और 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे LHS is equals to RHS. It means if we are going to pair up and rearrange, the answer will remain the same. Similar will go with your multiplication. So last law is your distributive law. ये law होता है बेटा multiplication over addition. ठीक है, इस law को समझते हैं। देखिए, अगर नंबर दे रखा होगा a, बाहर आपका multiply b plus c, it means this a will first of all be multiplied with b and then with c. इसको लिखेंगे कैसे, a इंटू b प्लस a इंटू c। एक बार आपका ये जो a है, एक बार जो आपका a है वो पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a आपका क्या होगा, c से मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर ऐसे आ जाएगा। इसको नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल 6 ब्रैकेट के बाहर 5 प्लस 3। इट मीन्स ये जो 6 है पहले ही आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद योर 3। तो 6 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन, बेटा यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो ये आपका माइनस आएगा। वट एवर द साइन विल बी गिवन इन द सेंटर, यू विल पुट दैट पर्टिकुलर साइन ओवर हेयर। ओके, 6 इंटू 3, 6 5s are 30 एंड 6 इंटू 3 विल बी योर 18। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 48। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक, पहला क्वेश्चन होगा यू हैव टू इवैल्यूएट दिस नंबर। देखो बेटा, एक तो तरीका होता है 25 इंटू 30, फिर जो भी आंसर आएगा यू विल मल्टीप्लाई दैट आंसर विद 8। दैट है, यू विल नॉट डू दिस। यहाँ पे आप लोग पेयर्स बना के इसको सॉल्व करोगे, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। क्या करेंगे हम लोग इसमें, 25 को we'll pair it up with 8 and then after we'll multiply it with 30। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 8 विल बी योर 200, 200 इंटू 30 एंड देन 200 इंटू 30 विल बी 2 3s are 6। 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, मिला के आंसर हो गया आपका 3 0। तो ये हो गया 6000 इज योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बेटा देखो, ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन को हम लोग मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 385 इंटू 178 है, यहाँ पे भी 385 इंटू 78 है। तो हम लोग क्या ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 385 और यहाँ पे 385 कॉमन है। ठीक,
तो इस 385 को वील टेक इट आउट, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस टर्म से 385 चला गया, इस टर्म से आपका 385 चला गया, बचा क्या 178, तो यहाँ पे आप 178 लिख दोगे। सिमिलरली इस पूरे टर्म से आपका 385 चला गया, यहाँ क्या बचा 78, सो यू विल राइट 78 ओवर हेड। ठीक, अब देखिए 385 ऐसा कैसे लिख दोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू योर BODMAS रूल, अकॉर्डिंग टू योर BODMAS रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 178 माइनस 78 विल बी योर 100, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 385 इंटू 100 विल बी योर 38500। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे माइनस था इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्लस का भी कर लेते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आपकी ही बुक का क्वेश्चन है 365 इंटू 645, बीच में प्लस का साइन, 135 इंटू 645। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा 645 और 645 दोनों में कॉमन है, विल टेक आउट 645। इस फर्स्ट टर्म में से आपका 645 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 365, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे भी आपका 645 चला गया, बचा क्या 135 हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 365 प्लस 135 विल बी 0, 3 प्लस 4 115 500। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी योर 32250। ठीक, क्लियर। सो गाइज लेट्स टर्न अप टुवर्ड्स अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखिए बेटा इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना कैसे है, आपको यहाँ पे DMAS का रूल लगाना है। DMAS मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, E मीन्स एडिशन एंड S मीन्स योर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। देखिए बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली चीज देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, D से डिवाइड। तो यहाँ पे बेटा आपका डिवाइड का साइन कहाँ पे है, किन दो चीज नंबर्स के बीच में है, 10 और 5 के बीच में है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 10 और 5 के बीच में अगर डिवाइड है तो सबसे पहले यू विल कॉपी दी होल क्वेश्चन एज इट इज। 10 में 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, यू राइट है 2। नाउ आफ्टर डिवाइड व्हाट यू हैव टू डू इज M यानी कि मल्टीप्लाई का साइन इन दो के बीच में है, तो 8 प्लस 2 2s are 4. Again 8 plus 4 will be your 12. So the answer here will be your 12. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दो डिवाइड के साइन है, एक तो इस सेट में है, एक इस सेट में है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15 डिवाइड बाय 5 विल बी योर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 4 डिवाइड बाय 2 विल बी योर अगेन 2, 3 2s are 6. So the answer here will be 6. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सीम्स a bit complicated, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिर से DMAS का रूल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू DMAS फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गोइंग टू डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आपका इन दो के बीच में, 39 माइनस 18 डिवाइड बाय 3 विल बी योर 6 प्लस 2 इंटू 3। अगेन आफ्टर D M आता है, तो M यानी कि मल्टीप्लाई इन दो के बीच में है, 39 माइनस 6, 3 2s are 6। अगेन बेटा देखो +6 एंड -6 विल गेट कैंसिल आउट, आंसर आपका आ जाएगा 39। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर डिवाइड एंड वेरीफाई बाय डिविजन एल्गोरिथम। बेटा देखिए डिवाइड करना हम सबको आता है। ठीक, दिस इज द डिविजन साइन। यहाँ पे हम लोगों के पास 4 टर्म्स होते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड तो हमें करना ही करना है, उसके बाद आंसर को भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो वी विल स्टार्ट लर्निंग हाउ वी विल डू दिस। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या चीज़ कहाँ पे आती है। सबसे पहले जो नीचे बचता है उसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर, दिस इज नोन एज योर रिमाइंडर। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज योर डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज योर डिविडेंड, एंड हेयर इट इज नोन एज क्वोशिएंट।
ठीक, तो रूल क्या कहता है? योर रूल स्टेज दैट योर डिविडेंड यानी कि दिस नंबर शुड बी इक्वल टू योर डिवाइजर into quotient and whatever the answer comes we'll add this with your रिमाइंडर। बेटा तो यहाँ का ये रूल यहाँ पे क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू योर डिवाइजर इनटू योर क्वोशिएंट प्लस योर remainder. So guys, this was the last topic from the chapter operations on whole numbers. Hope everything is clear to everyone. If there are still any doubt left, you can consult me in the online class, or you can also comment in the comment section and then ask your doubts over there. I'll be soon coming back with my next video. Till then, stay tuned. Bye bye.